ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلوی گجرات سورت سے بات کر رہا ہوں۔ جیسے کہ ایک دیوبند کے فارغ بہت بڑے مفتی صاحب سے مجھ سے بات ہوئی جن کا نام تھا اصل ربانی صاحب، ٹھیک ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ سوال کیا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سنی حنفی بریلوی جو ہوتے ہیں بدعتی ہیں، مشرک ہیں، معاذ اللہ ایسا تہمت لگاتے الزام لگاتے ہیں، تو آپ کبھی بھی وہی موقع پر بولتے ہیں ہاں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بدعت پر بات کریے اور کوئی سنیوں کا کوئی ایک بھی عمل بدعت ثابت کر لے جائیے اور میں 50,000 آپ کو انعام دے دوں گا، میں توقع بھی کر لوں گا، اس ریکارڈنگ میں آپ سن سکتے ہیں۔ لیکن یہ دیوبندی مفتی صاحب کی بات نہیں کر پائے، بدعت سے صرف لایانی باتیں، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں، صرف لایانی باتیں۔ الٹا مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو مدار پہ زیادہ چڑھانا یہ کہاں ثابت ہے، جب تم کو پتہ ہی نہیں کہ ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کا ہم شرعی حیثیت کیا ہے؟ تم نے بدعت کے حکم لگایا تو کیسے لگایا؟ صرف دیکھ کر کے حکم لگایا۔ تم مجھ سے الٹا سوال کر رہے ہیں کہ جو صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں ہوا وہ بدعت کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جو صحابہ اکرام کے زمانے میں، جو تابعین کے زمانے میں نہیں ہے، یہ اصول بنایا کہ نہیں ہے تو بدعت ہے، حالانکہ ایسا کوئی اصول، ایسی کوئی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ ان کا اپنا جو بندے کو اپنا گڑا ہوا اصول تھا۔ تو میں نے پوچھا پارا کہ مطلب کہ یہ جو آپ اصول بتا رہے ہیں یا بدعت کی تعریف کر رہے ہیں کہاں لکھی ہے؟ تو مفتی صاحب دعویٰ پر تو دلیل نہیں پیش کر پائے اپنے، الٹا مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حالانکہ چادر کو ہم ایک مستحب عمل مانتے ہیں۔ اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ چادر کی شرعی حیثیت بس اتنی ہے کہ ایک چادر اللہ کے ولی کی پر رکھیں گے اور اس کی صرف پہچان کے لیے کہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اور جب تک وہ گندی یا میلی نہ ہو جائے یا پھٹ نہ جائے جب تک دوسری چادر نہیں رکھی جائے گی۔ بس اتنا ہی شرعی حیثیت ہے، اتنا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا ہے چادر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ نہ تو ہم اس کو سنت سمجھتے ہیں، نہ تو واجب سمجھتے ہیں، نہ تو فرض سمجھتے ہیں۔ اگر ان سب کا ہم دعویٰ کریں گے ہم قرآن سے دلیل پیش کریں گے، ہم تو اس کو مستحب اچھا عمل سمجھتے ہیں، تو مستحب پر بھی میں بات کرنے کے تیار ہوں، لیکن یہ بدعت بول رہے تھے جناب، اور انہوں نے قرآن کی ایک آیت سچی میرے ذہن میں تو نہیں رہی، اور وہ انہوں نے بولا کہ تم نے ماں باپ کو اولیاء کو ماں باپ سے اوپر کر دیا۔ بالکل ظاہری حیات میں اگر ماں باپ ہے تو ان کا مقام مرتبہ بالکل بلند ہے، ہم انکار تھوڑی کرتے ہیں۔ بعض مثال اولیاء کا مقام بلند ہے، حدیث شریف میں اِنَّ ذِکْرَ الصَّالِحِینَ تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَۃُ وَالرَّحْمَۃُ، جہاں پہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو کیا کوئی دیوبندی بول سکتا ہے کہ جہاں پہ میرے ماں باپ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے؟ نہیں، یہ تو حدیث شریف میں ہے۔ بے شک اللہ کے ولی کا مقام مرتبہ بلند ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے ہاں فضیلت ہے، ماں باپ کی فضیلت ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اولیاء کو تم نے ماں باپ سے اوپر کر دیا۔ کوئی جاہل جب پڑھائیں گے تو میں اس کو کیا بولوں؟ جیسے قرآن کی آیت ہے، میں پڑھ رہا تھا لیکن انہوں نے مجھے پڑھنے نہیں دیا، میں یہاں بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 15 سورہ اسراء آیت نمبر 14 ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ ترجمہ یہ ہے جب نماز میں اللہ دعا کرتا ہے، ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے جس نے بچپن میں میرے رب بنے، کما رب بیانی صغیرہ، رب کا معنی یہاں پہ پالنے والا ہے، تو یہاں پہ بخشش کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ تو کسی اولیاء کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو میں پھر سے دوبارہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی دیوبندی وہابی ہو جو سنیوں کو کوئی ایک بھی عمل ثابت کر لے جائے کہ بدعت ہے یا شرک ہے تو میرے طرف سے اس کو انعام بھی رہے گا۔ اب اور پھر تو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے میرے نمبر پر کال کریں، میرا نمبر ہے 9925360780، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو جی، السلام کون علیکم۔ بات کر رہے ہیں؟ ہلو، جی کون بات کر رہے ہیں آپ؟ پتا نہیں یہ دھوکے سے لگ گیا ہے، میں بھی نہیں لگایا ہوں تو نہیں لگایا تو میں ہوں، میں صادق علی بات کر رہا ہوں جناب، ہاں میں صادق علی بات کر رہا ہوں، گجرات سورت سے میں بات کر رہا ہوں۔ لگایا میں ہوں لیکن میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں۔ ہاں اتنا اچھا، جانتا ہوں کہ میں آپ مفتی صاحب ہیں، اتنا جانتا ہوں میں، لیکن نام سے واقف۔ کیا نام بتائیں؟ کیا نام ہے آپ کا اصل مفتی صاحب؟ ربانی نام ہے میرا، کیا؟ بہار سے اصل ربانی۔
गुजरात वो मंसूर आलम को जानते हैं? मंसूर आलम किस एरिया में है? गुजरात तो बहुत बड़ा इलाका है। वो जामनगर ना क्या? जामनगर होंगे। तो आपको ये नंबर कैसे प्राप्त हुआ? मुझे किसी भाई ने नंबर दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा, आया था। क्या करना? तो थोड़ा वक्त है तो थोड़ा बात कर सकते हैं। हाँ, किस सिलसिले में, कैसी बात है? दीनी बातें कुछ समझने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, फरमाइए। मैं बोला मुफ्ती साहब है तो आपसे काफी मालूमात हो जाएगी इंशाल्लाह। जी जी, फिर फरमाइए, जी मालूम है देखिए, तो बता देंगे। जी हजरत, मैं अपनी पहचान बता दे रहा हूँ पहले। मैं अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हम तो बरेली हूँ। जी इस जी मालूमात के लिए कुछ बात करने के लिए मैं आपको फोन किया हूँ। जैसे कि जी मैंने उलमाए देवबंद को देखा है, तो बात पर उनका सुन्नियों बरेलियों पर वो कहते जी। हैं बिदअती है, शिर्क मुशरिक है वगैरह, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर देखा है। और जी। क्या आपका भी वही मौक़िफ़ है? जाहिर सी आपका बात हो नाम क्या गई। है? आपका मेरा नाम नाम? सादिक अली अंसारी। अच्छा, सादिक अली। जी हाँ, क्या पूछे थे अभी? नहीं, जैसे विद्यार्थी। हाँ जी, बिदअती कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, क्या जी, आप भी मानते हैं? अच्छा, यानी मैं अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर बिदअती, मैं जी आवश्यक कहूँगा कि जो चीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के दौर में चीज नहीं थी, उसको दीन का काम समझ करके फिर बाद में लोगों ने करना शुरू कर दिया हो, तो ऐसे आदमी को बिदअती हम कहेंगे, आप चाहे जो भी हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। मतलब आप बिदअती मानते हैं, ऐसा कहते हैं ना? हाँ, अगर वो बहुत सारे काम उनके ऐसे हैं हम्म। कि जो बिदअत हैं। अच्छा, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मतलब बिदअत हैं। जी, अच्छा, कोई भी एक अमल भी बिदअत साबित कर ले जाएंगे आप? बिल्कुल कर सकते उसमें हैं, क्यों नहीं? कर लीजिए, करिए, बिदअत साबित करिए उसको, मैं उससे जैसे, फौरन उससे रुजू कर लूंगा। अच्छा, कब्रों के अंदर जो है चादर चढ़ाना, फूल आवाज चढ़ाना। कट रही है हजरत, आपकी जी आवाज कट रही है। जी, कब्रों के अंदर चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना। एक चीज बताइए ना, एक चीज बताइए, जी जी। कब्रों को ऊपर चादर चढ़ाना या कब्रों के अंदर चादर चढ़ाना? कब्रों के ऊपर। कैसे चादर चढ़ा? आप बोल रहे हैं कि कब्रों के अंदर चादर चढ़ाना, अंदर कहाँ बोला हूँ भाई? ऊपर बोले आप। नहीं नहीं, कब्रों के हम्म, ऊपर बोल रहा हूँ। हाँ तो आवाज जरा कट रही थी इसलिए मुझे समझ में नहीं आया। तो ये बिदअत। जी, बिदअत में इसका शुमार है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप पहले ऐसा करिए, बिदअत के लुग़वी और इस्तिलाही मायने जरा बयान कर दीजिए, डेफिनेशन बयान अच्छा, करिए कि ये बिदअत की किस कैटेगरी में आता है। बिदअत अमली, नहीं बिदअत एतकादी, बिदअत हसना, बिदअत सय्या, नहीं नहीं, बहुत सारी आप ये फरमाइए। ये जो इसका आप जो है जो भी करते हैं, ये दीन समझ करके किया जा रहा है, ठीक है। और ना जो करे तो उसको जो है उसके बाद वो नकीर भी की जाती है, इसलिए ऐसे चीज को जो हम बिदअत शुमार करते हैं। आप शुमार करते हैं ना, तो आपका कहना काफी नहीं ना है, आपको दलील देनी पड़ेगी ना, नहीं क्योंकि नहीं, आपने कहा। मैं अपनी बात फराना कह रहा हूँ, शरीयत की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अगर तो अपनी इसीलिए कोई ना, तो नकीर होगी। शरीयत में कुछ उसूल बताए हैं ना, कवानीन कुछ बताए हैं ना, तो आप मैं तो साबित बता दिया, करिए। मैं शुरू शुरू में जब तारीफ किया तो मैं तो बता दिया ना आपको। क्या बताइए, आपने कोई हदीस नहीं बताई, कोई हदीस के मैंने बताया नहीं कि आप शरह नहीं बताई। मैंने जी, बताया नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में जिन चीजों का वजूद ना हो, उसको बाद में जो है दीन का काम समझ करके करना। ये तो कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं है, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। ये जो आप बता रहे हैं कि जो नबी के दौर में, सहाबा इकराम के दौर में नहीं इस हो, तारीफ पर तो वैसा बिदअत है। हालांकि ऐसे आपके अशरफ अली थानवी साहब ने भी बवादिर नवाज़िर सफा नंबर 458 पर लिखा हुआ है कि क्या किसी लिखा हुआ? चीज के लिए, वो फरमाते हैं, लिखते हैं कि किसी चीज के जवाज के लिए इतना ही काफी है कि उसके लिए अदम जवाज की दलील ना हो, उतना ही काफी है। अब अदम ओ, जवाज की दलील ना हो, ये तो इतना ही काफी वो कह रहे हैं, और आप कह रहे हो वो बिदअत है, अच्छा, तो ये है कोई क्या? चीज अदम जवाज की अगर कोई दलील ना हो तो वो चीज जायज है। हाँ जी, आप मना ये होने समझ की अगर रहे दलील नहीं है तो वो बिल्कुल हैं? जायज है। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल जायज है। तो आप बिल्कुल मुझे ये जायज है। सिर्फ, हाँ, सिर्फ ये कबर पर चादर चढ़ाना बिदअत साबित कर ले जाइए, या 50,000 रुपये इनाम ले जाइए। अरे भाई, ये तो बिल्कुल सरासर, इसमें बताइए ना, तो ये क्या है तो फिर?
अरे तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आपने जब बिदअत बोल लिया तो बिदअत लाए कहाँ से, ये डिफिनेशन मैं लाए तो कहाँ कहा से, कि वो तो मुझे साहबा के बताइए। दौर आप साबित नबी नहीं कर पाए सल्लल्लाहु तो उल्टा आप हमसे पूछ रहे हैं क्या मुफ्ती साहब? अलैहि मैं तो एक मैं तालिब इल्म मदरसे पढ़ने वाला लड़का हूँ। मैं कोई सुनिए मुफ्ती आलिम हूँ मैं? सुनिए तो सही, तालिबे इल्म की जबान इस तरह नहीं होती है। तो मैंने हम आपको भी कौन सी जानते हैं, बदतमीजी हम की भी है? मैंने आपसे कोई बदतमीजी की नहीं है? मैं बदतमीजी आपको नहीं। आप कर रहा हूँ जी। अगर आपको हक की तलाश है ना तो ये जबान इस्तेमाल नहीं करते इस तरह एकदम मैंने ये आपको कोई बदतमीजी की मुफ्ती साहब? मुनाजरा की बात कर रहे हैं आप। मुफ्ती साहब मैंने कहा कि सिर्फ एक बिदअत साबित कर ले, मैं उससे फौरन रुजू कर लूंगा और मैं तो आपको इनाम वही भी कह दूंगा। रहा हूँ, इसमें मैंने ऐसा कौन सी गलत बात की है बताइए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चीज थी। मैंने आपके अशरफ अली थानवी साहब की किताब पेश मैं की है आपसे बवाजुन अशरफ नमज नहीं की, पूछ उसके बारे रहा, में। मैं पूछ रहा हम्म, हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम होता था। ये वसूल कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप मुझे पढ़ के दिखा मैं दीजिए किसी हदीस में। मैं कह कहाँ रहा पे हूँ ना लिखा हुआ कि है? मैंने तो कभी आज तक नहीं पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा नहीं तो मुझे बता मेरे दीजिए। सवाल का जवाब तो दीजिए आप कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम होता था। बिल फर्ज अगर नहीं भी होता तो बिदअत थोड़ी कहलाएगा। तो क्या अगर कहलाएंगे? हो बिदअत नहीं कहलाएगा। हम उसको मुस्ताहब मानते हैं, कब्र पर चादर चढ़ाना मुस्ताहब समझते हैं, बस इतना ही समझते हैं कि ये अल्लाह के वली हैं। बस एक पहचान के लिए चादर चढ़ाते हैं कि ये अल्लाह के वली है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक अच्छा चादर, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि एक चादर सिर्फ उस पर रखो, आज जब तक वो मैली ना हो उस हाँ, दूसरी चादर उस पर नहीं रखी जाएगी। बस हम तो उसको मुस्ताहब समझते हैं। आप उसको बिदात बोले तो उसको साबित कर ले जाइए, तो मैं तर्जुमा भी कर लूंगा। अभी तक ना आपने कोई हदीस से पढ़ी ना आयत पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चीज नहीं थी। और मैंने कह बात तो दिया अगल बिल पर्दे नहीं है तो भी बिदात नहीं है। अच्छा ये बताइए, बुजुर्गों के कब्र पर आप लोग क्यों चढ़ाते हैं? क्या बोले? बुजुर्गों के ही के कब्र पर क्यों चढ़ाते हैं चादर? किसके कब्र पर? बुजुर्गों के कब्र पर। बुजुर्गों के कब्र पर। यही तो हम बोल रहे हैं कि पहचान के लिए कि ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम सिर्फ पहचान के लिए कब्र डालते हैं। अब आप उसको बिदात बोल रहे हैं तो बिदात की डेफिनेशन तो अभी आपने बताई नहीं। अभी तक कोई एक ना हदीस बताई, ना कुरान की आयत बताई, ना किसी मुफस्सिर का कौल, ना किसी मुहद्दिस का कौल। इंसान की नजर में अल्लाह और उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा किसका होता है? फरमाइए हजरत मुफ्ती साहब। उसके रसूल के बाद हम्म। एक इंसान की निगाह में सबसे ज्यादा मकाम और मर्तबा किसका होता है? एक इंसान की निगाह में नहीं, एक मोमिन की निगाह में बोलिए। हाँ इंसान ही बोल रहा आदत हूँ, है। इंसान का मुराद है इंसान। इंसान तो शिया भी होते हैं, तो यार कादियानी भी इंसान होते हैं। कामिल मुराद है। हम मुसलमानों के नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। फरमाइए आगे। अच्छा जी उसके बाद फरमाइए। उसके बाद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, उसके बाद मौला अली मुश्किल कुदा शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। अच्छा उसके आगे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हु, उनके बाद इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। क्या इमाम जो इतने ये जो अजीम हस्तियां हैं हाँ इनके कब्रों पर तो आज तक किसी ने नहीं चढ़ा। हाँ, तो क्या हुआ? तो नहीं चढ़ा तो क्या हुआ? तो नहीं चढ़ाया। बिदअत हो गया? नहीं हो बिल्कुल तो भी बिदअत हो गया। और अभी सुनिए मुफ्ती साहब आप तो पढ़े भी नहीं है, और मुझे तो लगता और है कि आगे आप तो झूठे। बढ़ेंगे हाँ सबसे। और फिर हम जो जहाँ जी रहे हैं हमारे जी। रिश्तेदार खानदानों में सबसे ज्यादा इन हाँ बुजुर्ग हस्तियों से भी ज्यादा, हाँ। ठीक है, जो पिराने पीर आप जिनको मानते हैं ना, इन तमाम लोगों को सबसे बड़ा मकाम मर्तबा माँ और बाप हम्म। का होता है। लेकिन हमने किसी भी बरेली को अपने माँ बाप के कब्र पर चादर और फूल चढ़ाते हुए नहीं देखा। अब सुनिए, माँ बाप की अहमियत जब तक वो दुनिया में है, जब तक वो है, लेकिन हाँ बाद विसाल औलिया अंबिया की क्या? ज्यादा कदर की जाएगी। बस बस आपको बस इतना मालूम नहीं? बस 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 क्या? क्या बस ये बस बस बस? कुरान के खिलाफ क्या आपने बात कर कुरान रहे पढ़ा हैं। नहीं क्या? कुरान पढ़ा नहीं क्या? कुरान के खिलाफ जा रहे हैं आप। लानतुल्लाह अल काज़िमीन। पढ़िए आयत पढ़िए। हाँ पढ़िए आप आयत पढ़िए। एक तो बिदात, ये पहले इस पर तो बिदात पर तो रहिए आप। आए कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हक के साथ माँ बाप के हक को जिक्र करके ये बता दिया कि सबसे बड़ा मकाम और मर्तबा हर बेटे की निगाह में उसकी बाप और माँ का होता है। हाँ तो और ये बिल्कुल तो है कभी ना। नहीं करते हैं। हाँ नहीं चढ़ाते हैं, ये जो है ना जैसे कुरान की आयत सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो कुछ पढ़े भी नहीं लगता है, है। नाम के मुफ्ती बने पड़े हैं। सुनिए कुरान की आयत अरे पारा भाई नंबर 15 क्या आयत पारा नंबर नंबर 14 सुनिए। हाँ सुना। वकुल रब अनहुमा कमा रब बयानी सगीरा।
हाँ ऐसे ऐसे पढ़ो। ऐसे ऐसे पढ़े, मैंने गलत क्या पढ़ा? हाँ तो पढ़ना तो सही दोबारा। अरे सही तो पढ़ा, वकुल रब्बिर अनहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आय अल्लाह, अल्लाह कुरान सही कर ले जा, या किसी क्या बोले? इससे ना कुरान सही कर ले, कुरान अरे तो पढ़ना कुरान नहीं सही से पढ़ा, मैंने गलत पढ़ा है तो उसको सही तो बता मैंने क्या गलत पढ़ा है। नहीं, वही तो कह रहा हूँ। तो कोई जहालत बक रहा है। अरे 50 इनाम लेते जाओ मुफ्ती साहब। कोई अरे बेवकूफ मैं- आदमी, इसको कुरान मैं पढ़ना- तंग आ गया मुफ्ती साहब, मैं देवबंदियों से तंग आ चुका। इतने बड़े बड़े इनाम रखता हूँ, इतने चैलेंज करता हूँ, लेकिन ये आप लोग झूठे मुफ्ती बनने पड़े हैं। तेरे क्या आप चैलेंज लोग को मदरसे में पढ़ते हो, झूठो लोगों का ईमान बर्बाद करते हो बैठे बैठे। अरे छुट्टियां पहले कुरान पहले सही कर लोगों ले। का बैठ के ईमान लूटते हो, शर्म नहीं आती आप लोग को? कुरान सही कर ले, कुरान नाजरा तो पढ़ना पहले आ जाए तुम तो फिर- अरे मैंने कोई गलत पढ़ा है तो उसको सही करेगा, मैं झूठे गलत 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 बोलते जा रहे हो। मैंने क्या दोबारा गलत पढ़ा वो तो बताओगे? दोबारा पढ़ तो सही, दोबारा दोबारा मैंने 2 बार पढ़ दिया। अभी मैंने गलत क्या पढ़ा है वो तुम बार बार बोले गलत पढ़ा गलत पढ़ा, इसलिए तो कि मैं सही तो इसलिए बताएगा ना repeat पढ़ के। सुनिए ना, रिपीट इसलिए करवा रहा हूँ झूठ मूठ क्यों बेवकूफ बनाते हो हमको तुम लोग? शर्म नहीं आती आप लोग को? अरे बेवकूफ है लोगों को बिदाती 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 बोल के शर्म नहीं आती तुम लोग को? रिपीट हमेशा लोगों को बिदाती बिदत के बोल के मुकर ना जाओ। बेशरम कह के। अभी बिदाती बोले बहुत सारे अमल है और एक भी अमल साबित नहीं कर पाते हो तुम लोग। बेशरम मरेगा लफ्ज़ भी मत इस्तेमाल करो। और लोगों को बेवकूफ बनाते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती है? मुफ्ती बने बैठे हो तुम लोग, क्या पढ़ते हो? अरे हराम को लोगों को, अरे लोगों को बिदाती मुशरिक कहते हो, गाली नहीं देते हो तुम लोग बिदाती मुशरिक कह करके? अभी मैंने तुमसे थोड़ी सी ऐसे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया, तुमको कुछ नहीं होने लगे। आराम को सामने होता है एक झापड़ मत है। तुमको है ना